Hello, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं फ़खर आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पाकिस्तान's first ever HD sports channel and our continued coverage of the HBL PSL9 and the news out of HBL PSL9 right now is कि रावलपिंडी में अभी मुकाबला हुआ and Lahore Qalandars have finally won their first game in the HBL PSL9. Joining me in the Pavilion to talk about it, I've got four fantastic former captains of Pakistan, four great minds of the game of cricket. I've got Azhar Ali. Good evening, assalamu alaikum, Azhar. Next up, I've got Mohammad Hafeez. Good evening, assalamu alaikum, Hafeez. Thank you. I've got captain, the most successful test captain in Pakistan's test cricket history, Misbah. Good evening, assalamu alaikum, Misbah. Good evening, wa alaikum assalam. And finally, ladies and gentlemen, I've got the Sultan of Swing, the swinging Sultan, the very proud and happy president of the Karachi Kings, Wasim Akram. Good evening and assalamu alaikum, Wasim. Assalamu alaikum, Ji. Must be very happy, Wasim. You've been very, very happy. I am. I know. So just very, very proud, right? Thank you very much. I am very proud, yeah. Yes. Karachi boys, Karachi team, and of course. And what a game they played. Like it was, they dominated today. It was do and die for them, and they really, dominated. Arrived. Yes, and Lahore Qalandars then. ये जो result आज का हुआ, इससे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा. काफी फर्क पड़ेगा जी. Lahore Qalandars have also pulled out a great victory. इस पे भी चर्चा करते हैं. इसकी बहुत चर्चा करते हैं. आइए जरा मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं सबसे पहले. Let's see how this all went down. This is how it went down today. Lahore Qalandars were put into bat by Shadab Khan, the Islamabad United captain, who won the toss and decided that he'd like to chase today. And this is what happened. Lahore Qalandars had a very topsy-turvy start at top of the order, but then they kind of steadied the ship. Van der Dusen, they're coming up with another fantastic half-century, 64 of 44 balls. And the captain himself coming through the party with 30 of 14. Great all-round performance by Shaheen Shah Afridi. And then it was Visa and Ehsan who both contributed. But look at that. On the other side, Ruman Rais picking up 2 for 19 in 3 overs. Shadab 1 for 23 in 3 overs. Hunain 1 for 24 in 3 overs. And Imad Wasim 1 for 24 in 3 overs, giving away 162 runs. And maybe that was just a little too many runs conceded towards the end of that innings. Islamabad United in response dismissed for 18.5 overs. 145 is what they managed. Fahim Ashraf finally delivering a performance with the bat, 41 of 31, though the single that he took that caused the demise of the last tail-ender is questionable. We'll talk about that momentarily. Azam Khan looked just absolutely fantastic. 29 of 19. He was looking like he's going to take Islamabad United home, but unfortunately it was just he just got carried away there. Naseem Shah also contributing with the bat today, 27 of 16, and Monroe there 15 of 16. Now Zaman there picking up 4 for 37 in his 3.5 overs, fantastically balled. Shaheen Shah Afridi 2 for 32 in 4 overs. Jandad 1 for 15 in 2 overs, and Vijay there 1 for 19 in 4 overs. Lahore Qalandars won this by 17 runs, and congratulations to Lahore fans. आइए जरा point table पे भी नजर डाल देते हैं. अब सूरत हाल point table के ऊपर इस तरीके से है. बदस्तूर ऊपर का टेबल वैसा ही है. Multan Sultans hold their first position. They are already qualified for the playoffs. Gladiators sit at the second place with 9 points. Peshawar Zalmi now tie them with 9 points at third place. And then Islamabad United there with 7 points because of this defeat. Karachi Kings sitting at number 5 with the 6 points. Lahore Qalandars kind of spoiled the party for Islamabad United tonight. Now they have 3 points, but they will remain at the bottom, and they are officially out of the playoffs. But that's how it is. That's how it's looking this evening. And yeah, this is getting really interesting. The business end of the tournament. Interesting game of cricket there by Islamabad United today, Wasim. Yeah, very interesting, very odd. एक तो मुझे समझ नहीं आया कि टॉस जीत के इन्होंने पहले अपना टॉस तो लाहौर ने जीता था जी. उनको बैटिंग ना टॉस इस्लामाबाद ने जीता था, लाहौर को बैटिंग दे दी थी सर. इस्लामाबाद ने जीत के लाहौर को बैटिंग दी, जबकि पहला मैच देखा विकेट थोड़ी डिफरेंट थी, मुश्किल थी. एंड आई थिंक दे एट वन स्टेज इस्लामाबाद वाले जब लाहौर वाले जब बैटिंग करने आए तो इस्लामाबाद ने पकड़ लिया था, ऊपर से विकेटें भी ले ली थी. ये 3 पे 30 भी आउट भी थे. उसके बाद 4 4 for 76, then 5 for 92, 6 for 117, and then they got to 162 on this pitch, and it was always a tough ask on this pitch. इन्होंने गलती की है जब इस्लामाबाद बैटिंग करने भी आया. We'll discuss this जब इस्लामाबाद की बैटिंग की बारी आएगी. भी हम लाहौर की बैटिंग की बारी कर रहे हैं. But Van der Dusen 64 of 44. Really exceptional inning. He's a very good player. He has been so consistent in this PSL, I suppose. And then captain came in as well in the end. But in general,
it was just not a great performance by Islamabad United. Yeah, it seemed like Misbah, too many holes in that Islamabad United effort tonight. बहुत कैजुअल अप्रोच आई थिंक कि जो सिचुएशन अगर टेबल पे आप देखें तो उस लिहाज से मैच आपके हाथ में है, आपने अर्ली विकेट्स ले लिए हैं, देन यू आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग योर बेस्ट बॉलर्स, नॉट गोइंग फॉर द किल, बल्कि आप मौका दे रहे हैं रीबिल्ड करने का। अगर शाहीन अंदर आए हैं, वंदर दूसन साथ खेल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप शाहीन के लिए ऑफ स्पिनर लगा रहे हैं, आप मेन प्लेयर को टारगेट नहीं कर रहे। आई थिंक ही शुड हैव बोल्ड हिमसेल्फ बिफोर, और उसके बाद फिर फ़हीम स्ट्रगल कर रहे हैं, फ़हीम को लेके आ गए और बेसिकली अलाउ किया उनको गेम में वापस आने के लिए। वो 2 ओवर लगे हैं को 25-30 के, और एकदम से मोमेंटम वापस आ गया। तो इतना क्रूशल जब मैच होता है तो आप कहीं पे भी गेम को हाथ से स्लिप नहीं होने देते, आप कंट्रोल रखते हैं, और आपके बाकी सारे बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। रमान रईस ने अच्छी बॉलिंग किया, 1 ओवर कम किया, हनैन शाह ने 1 ओवर कम किया। उस जब लेफ्ट हैंडर खेल रहा है उस टाइम पे लेफ्ट हैंडर ने बॉल की, फिर राइट हैंडर सेट है उसके सामने, आगा ने बॉलिंग की, फ़हीम अशरफ ने 3। तो ओवरऑल मतलब है जिन बॉलर्स को रन्स हुए हैं वो बॉलिंग कर गए, और आपके मेन बॉलर्स का 1-1 ओवर ज़ाया हो गया। तो वहाँ से आपने अलाउ किया कि 125-30 जहाँ मुश्किल लग रहा था लाहौर के लिए, वहाँ से आपने 160 क्रॉस करवाया। तो बड़ी हमारे यंग कैप्टन जो हैं, जो आगे जाके फ्यूचर में पाकिस्तानी कप्तान भी बन सकते हैं, नो डाउट। ये शादाब, ये शाहीन अभी तो है कैप्टन हमारे। इनको आई सपोज कैसे सिखाया जाए कि व्हेन द थिंग्स आर डाउन, अगर आप टीम बैटिंग अगर 5 आउट कर ली है तो गो फॉर द किल, डोंट थिंक कि आखिरी 3 ओवर किसने करना। और आपके पास आखिरी 3 का ज़रूरत नहीं, आपके पास मेन बॉलर जो अच्छे कर रहे हैं उसमें आप खुद हैं, आप क्यों 1 ओवर कम कर रहे हैं? आप तो अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, विकेट लेते हुए आ रहे हैं, तो यू शुड बोल एट दैट टाइम। आप उस टाइम ओवर निकलवाने की आपकी टीम में तो ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास वैसे ही एक्स्ट्रा बॉलर है। एंड देन आई थिंक जब बैटिंग भी आई, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ आवर वे टू प्ले, ओके फाइन, मारी जाओ तो आउट हो ही जाओ। नो बॉडी इज़ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नया बॉल है, यहाँ हमने पिंडी में थोड़ा सा नया बॉल, पावर प्ले, आपने थोड़ा सा ध्यान से खेलना है। अर्ली विकेट्स जाती हैं, कोई मसला नहीं, बाद में आप आराम से यहाँ 10-12 की एवरेज 7 आउट तक भी हो रही थी, फ़हीम अकेला था तो भी हो रही है, बट they kept on losing wickets and the kind of run out Munro जैसा senior player, I mean इतनी mistakes and suddenly now they feel 7 पॉइंट हैं, दोनों मैच हमने जीतने हैं, एक भी हारे तो हम बाहर हैं। Yeah, they put themselves in that position. They have. But let's now start off talking about Lahore Qalandars batting, Hafeez. Sahibzada Farhan and Fakhr Zaman both looking very out of touch. हल्का सा सीम हो रहा था, ही बोल्ड वेल, ब्यूटीफुली ही बोल्ड। नसीम पहला ओवर जो नॉर्मल आउट स्विंग होता है वो हमारा के ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर्स साहबजादा फरहान जी, ये जी। सो वो तो टेक्निक लग रही थी कि जिंदगी में वो स्विंग बॉलिंग नहीं खेला, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी यू नो नीचे जा रहा है, अनकंफर्टेबल, वेरी अनकंफर्टेबल। देखिए आप पहले ओवर देखें, एक तो इट्स बिकमिंग addiction, to be honest, to watch him bowling the first over. I'm talking about Naseem. With the same time, he's challenging the technique of a batsman. और वो जैसे वसीम भाई ने बात की, he was really uncomfortable facing the first over. And he's an opener. लेकिन आजकल है जी आ रहे हैं। वही that's what I'm saying. जब रेड बॉल में भी ओपन करता है ये। Yeah, he had a very good season. लेकिन ये इसका इशू है, नए बॉल पे स्विंग होता हुआ, even he was struggling in New Zealand, कि इसका वो जो बाउंस वाला जो था थोड़ा सा स्विंग, थोड़ा इसको काम करना पड़ेगा। ही इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, अच्छा उसका सीज़न चला है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू इम्प्रूव। आई थिंक न्यू बॉल ऑपरेशन को थोड़ा सा मजीद कंट्रोल के अंदर लाना एज ए ओपनर इनके लिए ज़रूरी होगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि कोई भी जो टॉप लेवल का बॉलर है, जो पहला ओवर आपको करने आएगा या पहले नया बॉल ऑपरेट करेगा, वो आपको चैलेंज करेगा। अजहर ने ओपनिंग किया इतना अच्छा। जब आप बॉल इतना हिल रहा है ना, आपकी अगर बेस नहीं है, आप हिल रहे हैं, तो यू हैव नो बिफोर द डिलीवरी ऑफ द बॉल आ रहा है और आपके पाँव जो है ना उसी जगह पे मतलब एक तो हिल रहे हैं और डायरेक्शन लाइन में भी नहीं आ रहे आप। तो आई थिंक जब आपको इतनी टॉप क्लास बॉलिंग हो रही होती है, यू हैव टू कम इन द लाइन ऑफ द बॉल और बल्ले को अपनी बॉडी के अंदर रखना है। इवन इन T20 यू कांट जस्ट पुश द बैट अवे फ्रॉम योर बॉडी एंड जस्ट होप दैट इट विल हिट योर बैट, क्योंकि आप नज़र से दूर है आपके बॉल, यू जस्ट होपिंग के बल्ला लग जाएगा। और इतनी पेस से, इतनी स्विंग से आपको बल्ला नहीं एक रीज़न है, अगर आप ये देखें दोबारा चलाएं तो खेलते हुए देखें कि वो लेग स्टंप पे खड़े होते हैं
क्योंकि बेसिकली उनको प्रॉब्लम है अंदर आते हुए बॉल के लिए। Right. तो वो ये दोबारा डरते हैं स्टंप्स को कवर करते हुए, इसलिए फ्रंट लेग फटाफट हटाते हैं। अब जब आपकी स्टंप्स कवर नहीं है और आउट स्विंग आपको होता है और पिछली टांग आपकी स्टक है, तो हमेशा आपको प्रॉब्लम है, आपकी अगली टांग नहीं आ रही इस तरफ, क्योंकि आपको पता है कि अंदर गेंद आएगा तो मुझे इश्यू है। तो आपको पिछला पैर जब तक वो लाइन में नहीं लेके जाएंगे, ऑफ स्टंप पे नहीं लेके जाएंगे और फिर आप फ्रंट लेग आपकी आएगी बॉल की लाइन के मुताबिक, उस वक्त तक आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आउट स्विंग खेलना। फ्रंट लेग वहीं पे है, आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। उनको प्रॉब्लम होती है अंदर आते हुए गेंद से, उसके लिए वो अपने आप को पोजीशन करते हैं क्रीज लेग पे, स्टंप पे खड़े और जब वो अपने आप को उसके लिए तैयार करते हैं कि इन वाले अंदर वाले गेंद से मैंने बचना है, तो बाहर वाला खेला नहीं जाता। इसमें मैं आपको बता दूं, मुझे भी अंदर आने वाले बॉल पे समटाइम प्रॉब्लम अक्सर प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन मैंने एक चीज़ का डिसीजन किया और जिनसे भी बात की कि जितना आप उससे लेग साइड पे रहोगे ना, आपको कोई एडवांटेज नहीं होने वाला। यू स्टिल नॉट श्योर अबाउट योर ऑफ स्टंप और आपको बॉल की लाइन में आने के लिए टांग को क्रॉस से ले जाना पड़ेगा। इससे बेहतर आप बीच में आए ताकि यू कैन गो स्ट्रेट, ठीक है ना, फिर आप अपने स्टंप्स को इजीली संभाल सकते हैं और आउट स्विंग भी आप बहुत कवर करेंगे। ये वैसे बात वहाँ पे थोड़ा सा actually better you go there right away, straight away. I think this is an important thing with a lot of young वैसे समझ नहीं आ रही होगी लोगों को इस चीज़ की। इसको जरा सही तरीके से अजहर आप बताएं एग्जैक्टली कि क्या पोजीशन बननी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। देखिए जो स्टंप्स है ना, अगर जैसे अभी आज साहबजादा खेल रहे थे, ही वाज स्टैंडिंग ऑन लेग स्टंप, सो तीनों स्टंप बॉलर को भी नजर आ रही हैं। तीनों स्टंप्स बॉलर और भी ज्यादा कर देता हूं ताकि वो ट्रैक कर सकें कि ये लेग स्टंप बन रही है इस ब्लू पट्टी के ऊपर। ये जो और ये लाइट ब्लू पट्टी है, ये और कैमरा ये वाला है, बिल्कुल ये वाला। सो यूं खड़े हो ना, चलो छाट देना, थोड़े इस तरह करके ठीक है। तो बेसिकली जब आप लेग स्टंप पे खड़े हैं तो बॉलर को तीनों स्टंप्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, और आपको ऑफ स्टंप का भी इतना आइडिया, जब गेंद स्विंग हो रहा है आपको ऑफ स्टंप का आइडिया नहीं होगा। एंड ही इज नॉट शफलिंग एट ऑल, ही इज जस्ट डूइंग दिस एंड जस्ट होपिंग दैट ही विल प्ले विद द बैट। राइट। बेहतर ये है कि आप, अगर आपको अंदर आने वाले बॉल पे प्रॉब्लम भी है, यू गो इन द मिडल स्टंप एटलीस्ट, गेट योर बैक लेग ऑन अराउंड द ऑफ स्टंप, सो नाउ द ऑफ स्टंप इज कवर्ड। तो जब ऑफ स्टंप आपकी कवर होगी, यू कैन ओनली फोकस ऑन स्ट्रेटर बॉल। तो उसके बाद जब आउट स्विंग भी होगी, आपको हल्का सा पाँव लाना पड़ेगा, आप लाइन में आ जाएंगे। फ्रॉम हेयर यू आर अवे फ्रॉम द बॉल। यहाँ से अंदर आएगा तब भी आप गए, यहाँ से बाहर निकला, फ्रंट लेग क्रॉस जाएगी, अंदर वाले भी गेंद को कवर करेंगे, तो लेग बिफोर भी आप हमेशा कस्टमर है। बिल्कुल। तो यू नीड टू गेट इन लाइन विद द बॉल एंड कम स्ट्रेट टुवर्ड्स द बॉलर रादर देन स्टेइंग अवे एंड जस्ट विश। All right, thank you Azhar, really appreciate that. ये तो हो गया जनाब साहबजादा फरहान। फ़खर ज़मान के साथ क्या हो रहा है मिसबा? Because for a lot of the Pakistan cricket team he's having probably the worst problems as well. What do we? I mean, I don't know what to say of that. I mean, what do you make of it? अच्छा, खेलते हुए कोई ऐसा नहीं लग रहा कि फ़खर को कोई जिस तरह कहते हैं ना कि थड़थली भई हुई है, नहीं, खेल रहा है, मिडल भी हो रहा है, सारा कुछ है, बट इट्स जस्ट द डिसीजन मेकिंग। जो भी वो चांस ले रहे हैं या खेलने जा रहे हैं, वहाँ पे जिधर भी वो मार रहे हैं आउट हो रहे हैं। बेसिकली आज भी जिस शॉट जो वो खेलने गए हैं, नॉर्मली ये इनकी शॉट है और यहीं पे मारते हैं वो, क्योंकि पहले ये शॉट मारा और फिर कैच जिस किस्म का होगा। ये वो टाइम है कि जब आप जो भी करते हैं वो गलत होता है। जैसे हफीज जो भी टीम लेते हैं, सानू भी लैड डूब देना। पहले कहते हो तो लिख, यानी सारे मैचों में लाहौर ली है, लाहौर एक भी नहीं जीती। आज नहीं ली हफीज ने तो लाहौर जीत गई आज। Yeah, fantastic. इसका मतलब फ़खर ज़मान का कसूर नहीं है। मेरे मंगत All right, that's well. We hope that Fakhar Zaman can get Sometime his touch back. it happens in yeah, cricket. we just truly hope and pray that Fakhar Zaman jaldi se he finds his touch. Van der Dusen was saying what innings he played today. I mean, if it was not for his innings, and that's the reason why he was also man of the match, is they would have never reached this total because they had already lost for 2 wickets were down at 25, 26 runs, and then this recovery by this man, just outstanding. Shai Hope played on every shot, Sikandar Raza played on every shot, and Dusa ही है जो उनका स्कोर कर गया 64 or 44 with the strike rate of 145, and they reached to 162, and that was always a big total.
Yeah. He started off, देखिए उसने भी शुरू बॉल उसको भी घूम रहा था, स्विंग हो रहा था। जी उसकी टांग जो है पिछले बॉल सामने ऑफ स्टंप कवर किया हुआ। कवर देखे ना, ऑफ स्टंप उसके ऐसे लग रहा है उसको बॉल कम स्विंग हो रहा है। जब आप इफ यू आर अवे फ्रॉम द बॉल इट विल स्विंग मोर। या और ये जो ओवर से ये जिसे कहते हैं ना खाता खोला था, ये 2 ओवरों के लिए 1 ओवर के लिए आगा सलमान को ले आए थे, अब अफरीदी के लिए अटैक इसने कर दिया उस पर, उसके बाद फिर he never looked back and I think मैन ऑफ द मैच ठीक है, 4 जमान ने आउट किए, बट इसको ठीक मैन ऑफ द मैच मिला बिकॉज मुश्किल विकेट पे मुश्किल सिचुएशन में इसने अपनी टीम के लिए स्कोर किया। सो ही हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट फॉर लाहौर आई थिंक। और ये भी देख लें कि फाइन लेग पे ये हमेशा ये शॉट खेलते हैं, गो टू शॉट है उनकी, जब भी विकेट ऐसी होती है मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन हमने भी कसम खाई है कि नहीं रखनी है हमने फाइन लेग पीछे, हमने इसको 2 शॉटें वहाँ पे देनी है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो आपको अटेंशन टू डिटेल्स जब हम बात करते हैं वो आपने ख्याल रखना है, वरना मैच जीतने में और हारने में ऐसे ही है। आपने एक गलती की है, जो टॉप क्लास प्लेयर है वो उसको कैश करते हैं, उसने फाइट किया, सब ज़्यादा कहीं पे हमें नज़र आ रहा था कि वो गिव अप कर गया था जब मूवमेंट हुई है और उसने, लेकिन इसका और उसका फ़र्क है इसने कोई ना कोई उसका तोड़ निकालने की कोशिश की है कि मैं ये टाइम गुजारूं और फिर मैं वापस प्रेशर डालूं। उसने पिछले मैचेस देखे हैं कि जहाँ पे गेंद स्विंग हुआ है 6 ओवर के बाद चीज़ें आसान होती हैं, उसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके बाद कैश इन किया और उसने हर कंडीशन में रन किए हैं। वेरी कंसिस्टेंट इन अ टीम जो हारती आ रही है बट ही स्टेड हंगर्ड अबाउट। देखिए यही चीज़ हम बात जो हमेशा से कर रहे हैं कि अडेप्टेबिलिटी आपकी और फ्लेक्सिबिलिटी आपने थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। All right, change according to the condition. Time for a break. We'll see you on the other side. Stay with us. You're watching A Sports. Welcome back to the Pavilion. I'm Akram. आप देख रहे हैं Sports. Our continuing coverage of the HBL PSL9. We're talking about the game. Lahore Qalandars winning this one against Islamabad United, and a great display there by Lahore Qalandars. Some very mediocre cricket there by Islamabad United. क्या बात कर रहे थे और आपने भी क्या पूछा मेरे से वापस आके? मैंने पूछा कि आप फरहान की बैटिंग की बात की, हमने वंदर की बैटिंग की बात की। वो तो मुझे पता है भाई, उसने जाके वहाँ पे डेमो भी दिया है किस तरह अपनी ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप को कवर करना है। सबको लग रहा है आप सो रहे हैं? पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। एब्सोल्युटली आज सदर कराची किंग जो हैं वो बहुत खुश हैं। आज नहीं, हाँ, लेकिन हर रोज भी ईद नहीं होती। Yep, great innings by Vander Dusen हमने बात की आखिरी, and now let's talk about Shaheen Shah Afridi coming up with a great knock there, all-round performance by Shaheen. Great तो अलावा कोई लफ्ज आता है भाईजान? अच्छा, very good performance there by Shaheen Shah Afridi. Spectacular exhibition of various shots by Shaheen. खुश हो पाए उन्होंने? नहीं, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी थी। आए और आके अपने वो जो पिंच हिटर का एक रोल उन्होंने अपने लिए चुना कि मैं खुद जाता हूँ और जाके कुछ शॉट्स खेलता हूँ ताकि ये जो प्रेशर बना हुआ इसको तोड़ूँ, एंड ही गॉट सक्सेस इन दैट। लेकिन अगर दूसरी तरफ जाऊँ, जो इनसे भी ज़्यादा मुझे इम्पैक्टफुल लगा वो डेविड विजे का कमबैक था। इन्होंने तो परफॉर्मेंस दी लेकिन वो एक इंजरी से वापस आए और वेरी फर्स्ट मैच में जब आए तो बहुत ही अच्छी बैटिंग भी की और जो बॉलिंग भी उन्होंने 4 ओवर में शायद 19 रन दिए। तो आई थिंक इनकी बैटिंग की तारीफ हम इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने वो जो मोमेंटम, वो जो इशू था इनका, जहाँ पे ये एक किस्म का एक टेंटेटिव जोन था कि जहाँ पे ये एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे थे, वो एक्सेलरेशन इन्होंने दी। लेकिन वंडर डूसन के साथ जो फिनिशिंग टच डेविड विजे ने दिया, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल था और उसके साथ जो उनकी बॉलिंग का 4 ओवर थे वो बहुत अच्छे थे। जी हाँ, बेहतरीन काम हो गया ये तो, जबरदस्त हो गया। विजय की भी आगे इनिंग्स सर, वसीम भाई चेक कर लो। या इज अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, इसीलिए रिटेन किया हुआ इसको लाहौर ने काफ़ी अरसे से, एंड यू नो एक्सपीरियंस मैटर्स एंड ही नोज कि इस सिचुएशन में आते ही सिचुएशन में रखा ही सिचुएशन के लिए हुआ है कि बैटिंग कैसे करनी है। और उसका 24 रन 11 गेंदों पे 218 के स्ट्राइक रेट से लाहौर को, इस्लामाबाद को बहुत, लाहौर को बड़ा फ़ायदा हुआ है। और वसीम भाई इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये थी कि इतनी देर बाद मैच खेल रहे थे, आके उन्होंने बस मारना नहीं शुरू किया। आके उन्होंने वो एक्सपीरियंस की जो बात की आपने कि गैप्स में खेलते रहे, अलॉन्ग द ग्राउंड ज़्यादातर शॉट खेले उन्होंने, एरियल शॉट्स कम खेले, जिससे ये है कि एक काइंड ऑफ सेफ इनिंग भी थी कि ये भी नहीं था कि बहुत सारे रेस लगे और स्ट्राइक रेट भी 218 का जो दुक्का चौका इस तरह की चीज़। I think it's a very good knock. Yes, it is. Colin Monroe, Alex Hales, हम कह रहे थे कि दोनों फॉर्म में आ गए हैं, बड़ा जबरदस्त लग रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में 2-3 इनिंग्स लग गई दोनों भाइयों की। उसके बाद जो है वो मामला जो है थोड़ा सा वो ट्रेन पटरी से उतर गई है। It appears at times they checked out. Yeah, they kind of just here physically.
Just because they have been busy, Alex Hales or Monroe from BPL for 2 months, then month in Dubai for IPL, for ILT20, then here. And yeah, 3.5 months is a long time. So it's tough for them. But yeah, वो रन आउट हो गए. एलेक्स हेल को शाहीन अफरीदी ने शुरू में 2 गेंदें खेल पाए, आउट कर दिया. Looked quite average. और उसके बाद it was a sorry state. I mean, we go down the batting order a little later, but वो सिचुएशन में मैच जीत सकते थे अगर ये फ़हीम अशरफ सेंसिबल बैटिंग करता कि तीसरी गेंद पे सिंगल ना लेता, चौथी पे सिंगल ना लेता, टेल एंड बैटिंग कर रहा है, कोशिश करो 5वीं गेंद तक जाओ, उस पर या छिक्का मारो या सिंगल करो, नॉट ऑन अ 3rd बॉल और अ 4th बॉल. मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ जो आपने बात की है, अक्सर ये कहा जाता है और ये हमने बहुत सी मरतबा सुना कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो डाटा ड्रिवन टीम है. तो ये डाटा जो है ये वन वे ऑफ लूजिंग पैटर्न को क्यों नहीं बदल पा रहा कि हमेशा जब ये हारते हैं तो इनकी बैटिंग का कोलैप्स क्यों नज़र आता है, क्यों इनकी बैटिंग जो है वो इस तरह इररिस्पॉन्सिबल खेलती है. यस आई एम ऑल फॉर इट कि डाटा के थ्रू आप कुछ पिक्स करते हैं और उनको उसके मुताबिक रोल प्ले करने के लिए कहते हैं, लेकिन आप इनके पिछले 3-4 सालों का जो भी फेलियर मैं समझता हूँ कि हमेशा जब भी जाते हैं एक क्रूशल स्टेज पे हारते हैं तो उसकी वजह एक ही नज़र आएगी, आपको रिस्पॉन्सिबल बैटिंग नज़र आएगी. तो कहीं ना कहीं इसका हल भी इस डाटा को ढूंढना चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबल जो बैटिंग है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं. और ऑल आउट हो रहे हैं, आज भी ऑल आउट हो गए. मतलब एक 20 ओवरों में आप कितनी दफ़ा ऑल आउट होंगे पूरे, अगर आज भी पूरे बॉल खेलते तो मैच आप जीत गए थे. क्योंकि ऐसे पिच पे हारने की एक ही वजह हो सकती है कि पहले 6 ओवर में आप 4-5 आउट हो जाए, और वही हुआ. तो व्हाई नॉट के डाटा ये भी उनको समझाए कि पहले 6 ओवर में अगर हम विकेट्स ना लूज करें तो वी कैन विन द मैच एट द लेटेस्ट स्टेज ऑफ द गेम. But Hafeez, I think Misbah is making good point कि even after losing those wickets, एक टाइम ऐसा आ गया था towards the tail end of this game कि जहाँ पे यूँ लग रहा था कि फ़हीम अशरफ can take the team home. In fact, the पूरी जो shots हम टीवी पे देख रहे थे वसीम, the entire team was looking completely. Even Naseem Shah, I've been saying he can bat. Yes, he has the ability. बट उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. 2 छक्के इतने ज़बरदस्त मारे शाहीन को, उसके बाद अगली टांग निकली, नहीं पता था कि बाउंसर आना है. अभी अज्यूम ना करो, गेंद ही है ना, गेंद ही लगेगा ना ज़्यादा से ज़्यादा. Imad Wasim, Azhar, Imad Wasim just doesn't look into this PSL at all. I mean, I'm getting a little worried for him. He's such a great player. I mean, this is not how he should be showcased at such a big tournament. Yeah, जो पहले बॉल जिस तरह चौका मारा, we all thought there कि यार आज जड़ा ना आज नहीं सही करेगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेरी नेक्स्ट बॉल आई थिंक वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए पहले बॉल के बाद. बट प्लेयर लाइक हिम, एक्सपीरियंस प्लेयर, यू नो, ही नीड्स टू कम इनटू द पार्टी. काफ़ी बुझे से रहे हैं इस टूर्नामेंट में, इवन विद द बॉल, और कई दफ़ा बॉलिंग की भी नहीं. और अभी बैटिंग में भी आई थिंक 2-3 बारियाँ ऐसी आई हैं जहाँ पे इमाद वसीम का ज़रूरत थी, जो लास्ट ईयर जिस तरह PSL गया, लेकिन कुछ अनलकी डिसमिसल कह लें. और आज का आई थिंक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल शॉट था लुकिंग एट द कंडीशन. ये तो बहुत अच्छा खूबसूरत शॉट, बिल्कुल मुंह में फीड कर दिया था. और वेरी नेक्स्ट बॉल अच्छे एरिया में गिरा हुआ बॉल था, लेकिन आई थिंक अगर आप स्लो मीडियम पेसर को टांग निकाल के नहीं खोलोगे स्लो पिच पे तो फंसोगे. देखो ना फ्रंट फुट कहाँ पे है, ये स्लो मीडियम पेसर है ना तो इसका बाउंसर होना है. पेस इसकी 125 है. अब ये चीजें बताने वाली थोड़ी है, 15 साल से खेल रहे हैं. आप बॉलर हैं, पहला जो चौका खाया उसने सेटअप किया, और वो गेंद बिल्कुल हल्का सा अंदर आया है, पूरा सेटअप करके अगला गेंद वहीं से उसने थोड़ा सा लेंथ खींची है उसकी, अंदर आया था गेंद, बिल्कुल क्रॉस किया, पूरा कॉन्फिडेंस दिया और थोड़ा सा एक्सैक्ट. मुझे खुशी हुई है कि अब्दुल्ला शफीक ने फर्स्ट स्लिप में कैच पकड़ा, और वो कैच के बाद सेलिब्रेशन भी देखेंगे अगर आप, उन्होंने चुप भी कराया है. अच्छा, करा दिया उन्होंने. ये देखें, एक तो उन्होंने कैच पकड़ लिया स्लिप में. इस बात पे पूरे पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि एक बेहतरीन काम ऑस्ट्रेलिया में 2 बड़े क्रिटिकल टेस्ट मैचेस की कैचेस गिराने के बाद क्या सेलिब्रेट किया, कैसे उन्होंने यूं सेलिब्रेट किया कि तो उन्होंने है कोई 10 जड़े कैच 36 ड्रॉप करके आए ऑस्ट्रेलिया. ओदा कौन जवाब देगा? ये आपकी आपकी स्क्रीन के ऊपर अब वसीम आपके लिए खास तौर पे ब्रिलियंट कैच, नो डाउट, ग्रेट कैच डाइविंग एंड पायन चेक करो. उन्होंने कहा बस अब आइंदा मुझसे ऑस्ट्रेलिया के कैचेस के बारे में कोई बात ना करें. कि क्रिकेट छोड़ो तो आके ड्रामे आज काम करो. नहीं, जो 36 कैच छोड़ के आया वो भी तो बता देना हमें फिर, अगर इस पे एक करके जैसे चुप कराना है सबको तो क्रिटिक स्कोर व्हाटएवर हिज मेंट वाज. I have no idea. I mean, clearly great catch though, and we hope अपने ड्रेसिंग रूम पे गुस्सा हो, उसको मैचेस नहीं खिलाए. हाँ, ये भी हो सकता है, वो शायद उनको बोल रहा हो कि you know some anything. Anyway, very good luck to him. Azam Khan, Misbah, we are looking at him as a
very important component of the Pakistan middle order for the T20 World Cup. And he has finished some games. He's played really well throughout this HPL PSL. But again today, it was as if he got the start, he was dominating, and then he just let it go. बिल्कुल आज भी उस सिचुएशन में 6 आउट हुए हैं और फिर भी ऐसे लग रहा था उनको कोई मसला ही नहीं है। बड़े मज़े से वो शॉटें खेल रहे थे एट विल। जो दिल्ली के 1-2 बॉल हुए शुरू में, बट जब भी उन्होंने अटैक किया है किसी बॉल को वो मारने गए हैं तो वो बड़े आराम से, ये देखें ये शॉट ऐसे आराम से छक्का मारा है और फिर उसके बाद हट के ये थर्ड मैन की तरफ चौका मारा है, उसके बाद वेरी नाइस चौका मारा है, फिर छक्का मारा है। बट वही चीज़ है कि आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने अच्छा प्लेयर या फिनिशर तभी बनेंगे जब आप सिचुएशन का 9.64 है एंड यू नो कि मुझे एक बाउंड्री चाहिए ओवर में, मैंने मार ली है 2 बाउंड्रियाँ या एक बाउंड्री एक छक्का मार लिया। मेन काम यह है कि मैंने करीब लेके जाना है मैच को। यहाँ से मैं अगर ले जाऊंगा 20 या 25-30 रन रह जाएंगे तो फ़हीम अशरफ हैं पीछे, मेरे हमारे पास प्लेयर है, कोई भी आके कर देगा। आप वन वे ट्रैफिक उसी तरह नहीं खेलते, आप थोड़ा सा आपको मेरे ख्याल में चूज़ी और डिसीजन मेकिंग अपनी बेहतर नहीं, बट अब इसके लिए नेक्स्ट स्टेप है। पिछले टूर्नामेंट में भी इसने 2-1-50 किए, मगर जब मैच करीब आया जीतने के आउट हो गया। आई थिंक यहाँ भी इसने 70 किया किसी मैच में, वो भी करीब आया, आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप फॉर हिम एज अ बैट्समैन इज how to finish it. He is a finisher. He can hit. We all know that. He's a dangerous player. But situation awareness ना मैं सिखा सकता हूँ, ना डैड सिखा सकता है, ना कोच सिखा सकता है, ये आपने खुद सीखनी है। ये बिल्कुल आपने खुद सीखनी है। But you know one thing was really good. It's good to see him cutting the ball and playing the late shots and playing the off stump and things that were not there in his repertoire that seem to come up now and he's executing them well. नहीं देखें, एक अच्छी चीज़ ये है कि इनके बैट में बॉल तो लग रहा है और ये स्कोर कर रहे हैं और ये इनकी शॉट रेंज भी बढ़ रही है। लेकिन जो वसीम भाई ने बात की, मैं सिर्फ उसको इसी तरह ऐड करूंगा कि एक वो प्लेयर होता है जो सिर्फ सिचुएशन के मुताबिक खेल सकता है, वो दूसरी सिचुएशन नहीं हैंडल करना चाहता। एक प्रोडक्ट होती है जो हर सिचुएशन के अंदर परफॉर्म कर सकती है। तो आज इन्होंने मैं ये नहीं कह रहा कि आज इनके, अगर पीछे भी थोड़ा सा आप जाएं तो इनकी जब इनकी 10 या 12 ओवर की बारी आई है, वो जो मिसबा बात कर रहे हैं कि कंट्रोल्ड इनिंग्स खेलना जिसमें 1 या 2 बाउंड्री के साथ आउट हुए बगैर आप 8 से 10 रन करें, तो इनके खेल के अंदर ये एक पुख्तगी आने की ज़रूरत है। मुझे लगता है मज़ीद इन्हांस करने की ज़रूरत है एज ए प्लेयर, जो आपको हमेशा ज़रूरत होती है अपने खेल को निखारने के लिए, कि ये यहाँ से अपनी इन मैचों को 12 ओवर वाली जो बारी है उसको कैसे लेके मैच जितवाते हैं। वी ऑल नो कि ही इज़ अ वेरी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन। आखिरी 4-5 ओवर में बहुत ज़्यादा तेज़ खेल सकते हैं, लेकिन वो जो 12 ओवर की बारी लेने वाला तरीका, यहाँ अगर आपकी बारी आ गई है तो वो आपने कैसे हैंडल करना है, दैट्स अ चैलेंज। आसान लफ्ज़ों में सिंपल है कि आपको काउंट करना है कि मुझे 1 बाउंड्री चाहिए ओवर में कि 2 बाउंड्री, और जब तक मैं करीब नहीं मैच होगा मैं उतना ही रिस्क लूंगा जितना मुझे ज़रूरत है। आपने एक रिस्क ले लिया, पे ऑफ हो गया, आपने बाउंड्री मार दी, नहीं अब नहीं, अब मैं और थोड़ा सा इस मैच को आगे लेके जाऊंगा, जब करीब आएगा तो देन आई विल जस्ट ट्राई टू फिनिश इट मे बी इन 1 over. All right, and Shaheen Shah Afridi picking up his 100th PSL wicket, so congratulations to him. Yes, a big deal, yeah, big deal, massive deal. Congratulations to our young captain. Yep, he's done really well for that, for himself. And with that, we're going to take a break here on the Pavilion. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion of Akram. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कंटेंट कवरेज ऑफ द HPL PSL9 और आज था सुपर वेडनेसडे। जी हाँ, सुपर सैटरडे और सुपर संडे के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर वेडनेसडे, जहाँ पे एक दिन में 2 मुकाबले थे। सो पहला मुकाबला जो था वो कराची किंग्स ने जीता क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, और दूसरा मुकाबला आज जीता है लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। और अब से कुछ लम्हे बाद हम शुरू करेंगे आपका हमारा फेवरेट सेगमेंट #AskThePavilion। आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है Ask the Pavilion, आपको नजर आ रहा है। इसके ऊपर आप अपने सवालात, अपने कमेंट्स जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन ट्विटर और ऑन X, and we will be answering them right here, right now. With me in the Pavilion, I've got 4 fantastic former captains of Pakistan. I've got Azhar Ali, I've got Mohammad Hafeez, I've got Misbah and the great Wasim, Akram, the president of Karachi Kings, who's very, very happy today. मगर इससे पहले कि हम #AskThePavilion का सिलसिला शुरू करें,
कल एक ग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत लम्हा था जो पेश आया। एक बॉल बॉय ने के कैच ड्रॉप किया, फिर मनरो ने उनको सिखाया कि किस तरह पकड़ना चाहिए, एंड देन ही टुक अ स्पेक्टेकुलर कैच एंड मनरो हग्ड हिम, लिफ्टेड हिम, एंड इट वाज जस्ट अ होलसम मोमेंट। व्हाट अ फैंटास्टिक मोमेंट दैट वाज एंड व्हाट अ ग्रेट फीलिंग इट वाज, ऑलमोस्ट इमोशनल। आई कैन सी टीयर्स इन वसीम अकरम्स आईज। अंदर से आप एक टेडी बेयर हैं, बाहर से हमारे साथ ऐसे ही ओके होते हैं, अंदर से आंसू आ रहे हैं भाई वसीम अकरम की आंखों में। It was very emotional, very touchy for a kid from Mohammad agency to be there and for Colin Monroe to show that gesture. And his dad was there as well. His dad was there. That was incredible. I see those tears, man. I can see those shiny eyes. It was a happy tears. Those are happy tears. That's the moment. That's the romance of cricket. That's the beauty of cricket. This is what you play for. Yeah. To inspire the generation. So it's a special one. And he did. Colin Monroe did definitely inspire. जिस तरह उन्होंने बताया, बाबर आजम भी बॉल बॉय होते थे एक ज़माने में. And you know, look at his journey and where he has come. And we wish this young man all the best. But what a fantastic piece that was. This will go down in the archives for all ages. Absolutely. This will be remembered for a very long time. And with that, it's time for hashtag Ask the Pavilion. Now, from the emotion, ये सर वो टिश्यू पेपर का डब्बा दे भाई तेरी तरफ है वहाँ पे वसीम। This is happy tears. It's, I know, I appreciate it, but I love it. I love the emotional side. I know you're a sensitive guy on the inside. ये और बात है कि आप हमें बहुत टफ टाइम देके रखते हैं इधर पेविलियन में सबके साथ, आप जो हैं बहुत कोड़ा बाबा तो निकल रहे हैं और निकल रहे हैं 12:20 हो गए ना, तो kodababa.com शुरू हो गया अब इस वक्त। ओकी डोकी राइट जनाब, we have a lot of questions coming in hashtag Ask the Pavilion में, और इसका बाकायदगी से सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। और जनाब जी okay, questions to I'll start. No, I'm going to start with जवाद शाह साहब ने एक वीडियो भेजी है हमें वसीम जी, ये बड़ी जरूरी है। Yeah, ठीक है, ये है अस्सलाम वालेकुम to the greats of the game, the 4 greats here that are with me. Can anyone ask Azhar Ali what was that? I guess Wasim Akram sir, you will bash me for this. वो पहले ही डरे हैं कि you will bash me. ये valid question था। अच्छा, अब वो वीडियो क्या है, क्योंकि वीडियो इधर है और हम इधर दिखा नहीं सकते। वीडियो जो है वो यूं है कि अजहर अली बैटिंग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच है, ऑस्ट्रेलिया वाला टेस्ट मैच है ये, और दुबई में, और इनके अबू धाबी की तरफ गेंद जाता है, गेंद बाउंड्री के पास जाकर रुक जाता है। मैं और असद एक मिनट मैं इसको बयान करता हूँ। बड़े स्टाइलिश तरीके से अजहर अली जो है वो अपने जो क्लासिकल उनका स्टाइल था कि वो गेंद के साथ मोहब्बत करते हुए वाली एज मारते हैं उसको, और समझते हैं कि उन्होंने चौका मार लिया है। एक्चुअली बिलीव्स के चौका मार लिया, भागते ही नहीं है ये। और इनके कौन थे आपके साथ? नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब मिडल होती थी तो मैं भागता रहता था कि मुझे यकीन नहीं होता था कि चौका हो जाएगा। हमें भी नहीं होता, लेकिन एज लग के मैंने कहा मेरा एज तो बॉलर की स्पीड है ना, उससे तो चौका हो ही जाएगा, तो इस वजह से मैं समझा चौका हो जाएगा। तो हुआ क्या, आपके साथ कौन बैटिंग कर रहा था? दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर्स, असद शफीक और ये, इन्होंने 60 टेस्ट मैचेस खेल लिए थे तब तक, उससे भी ज्यादा खेले। हाँ, कमेंटेटर ने बोला है कि 60 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। तो दोनों जेड़े ने बॉल जेड़ी है वो बाउंड्री क्रॉस नहीं की, और दोनों के दोनों पिच के बीच में खड़े हुए मीटिंग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और तू बता क्या हाल है, राती की खाए थी तू, नान खाए थे, खाए थे। पीछे से उन्होंने जनाब वहां से बॉल कलेक्ट करके थ्रो की और रन आउट कर दिया। देखा, मैं सारा देख रहा था। तो अजहर इसको एलैबोरेट कर, उन्होंने पूछा क्या? उन्होंने पूछा कि ये क्या हरकत थी आपकी यार? हुआ बहुत ही बुरी हरकत थी। सिंपल सी बात है। No, but I have a question. जी। Why? Why का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन it was one of those के एक चीज थी नाश्ते में पाए खाए थे। मैं फॉर्म में नहीं था, रन्स नहीं हो रहे थे और मसा मैंने 50 क्रॉस किया था। ठीक है। तो 64 आउट पे मैं खेल रहा था, तो मैंने कहा यार आज 100 हो जाएगा, ये कम बैक हो जाएगा ये वो। तो 2-3 चौके उस टाइम मेरे मॉर्निंग में आके लग गए, तो ये ऐसे करके लगा और वैसे गया गेंद, मैं गया तो निकल गया चौका। तो मैं आराम से बात कर रहा, ऐसा मुझसे पूछ रहा है कौन सा बॉल रिवर्स हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं कहीं नहीं रिवर्स हो रहा है, लेकिन थोड़ा ही हो रहा है, कोई इतना मसला नहीं। इतनी देर में ना एक थ्रो आती है ना, जैसे कि वाकई किसी रन आउट के लिए थ्रो की। मैं कह अरे अजीब सी बात है कि बाउंड्री पे लगा हुआ बॉल, ये इतनी तेज तगड़ी थ्रो क्यों कर रहा है? जब उसने ऐसे आना शुरू किया ना थ्रो के साथ, तो मैं कहा यार अजीब सा लग रहा है, मैंने हल्का सा झटका दिया, मैं इधर जाऊँ। मैं क्यों जा रहा हूँ मैं? उतनी देर जब उसने बेस उड़ाया ना, मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई। बट आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट कि जहाँ पे आपका दिमाग ना बिल्कुल वो जो कहते हैं मोमेंट ऑफ मैडनेस। गेम एक्चुअली गेम अवेयरनेस की बहुत बात करते हैं। एक्चुअली फनी चीज़ ये है कि आई थॉट के जो मेरे बच्चे हैं ना, वापस जाना था होटल, मैंने कहा था बच्चे ने ना छोड़ना नहीं है मुझे, क्योंकि हम जब क्रिकेट उनको समझाते हैं ना तो बड़े एक चीज़, तो मैंने कहा आज तो मैं गया। तो पहले जब होटल पहुंचा ना, तो मैंने जाते ही जब उसने बताया कि यार आपको पता है
आपके 300 के इतने व्यूज नहीं आए जितने इतने रन आउट के अभी तक आ चुके हैं। यार पापा के इतने व्यू आ गए। आप क्या समझते हैं 12 सिर्फ यहीं पे बचते हैं हमारे ग्राउंड में भी बचते हैं? ग्राउंड में भी 12 बच सकते हैं जी। I have a question from जवेरिया खान जो हमारे पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान हैं। उनका बड़ा क्रिकेटिंग और सीरियस क्वेश्चन है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। I really enjoyed the analysis of my Wasim, Akram and Misbah on the Pavilion. Now the addition of Hafeez and Azhar, the panel has made it more versatile. My question is that why don't we let our players grind a little more in domestic setup before introducing them to elite level cricket? For instance, in other countries, players go through different stages on foundation level. Like Gill and Jaiswal played for India after spending considerable time at grassroots level. And what is interesting is that they play Test and then play T20. We do the reverse. We play them T20 and then then we do the rest Test matches. How will a player temperament will be built this way? We are too quick to give newcomers a chance in international cricket and do not let them get used to of difficult situation, which is a difficult to play internationally, and when their weakness comes to light, we bench them. How such knee-jerk reaction will bring stability to team and to the player? Do you think our approach is okay? Wonderful, Javeria. I'll start off. It's a very deep question. Yeah. Javeria, and इससे पता लग रहा है कि आप क्रिकेट को फॉलो भी कर रहे हैं और of course इस बड़े लेवल पे खेले भी हैं. We are all super proud of you. Yes, नी जर्क रिएक्शन करते हैं. कुछ प्लेयर्स का नाम मैं आपको बताता हूँ जो मेरे जहन में भी आपके क्वेश्चन के बाद आए हैं. मूसा खान, अलियास, इमरान भट्ट, दानिश अजीज़, मुख्तार, शमी असलम, हमाद आजम. दे आए, एक मैच खेले, they disappeared and they're still young, especially Musa and all these guys. So this is our system. That's what we have been doing, not just now, from last I don't know how many decades. Yeah. ये ठीक कैसे होगा? That's a mystery. Now you guys can give your views on it. What do you think? देखिए, मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले भी ये डिस्कशन हुई है, तो यही बात हुई है कि आप जब PSL में भी इवन पिक करते हैं, 2020 में भी प्लेयर्स पिक करते हैं, जाहिर है उस फॉर्मेट के हिसाब से उनके स्किल ज़रूर देखें, लेकिन उन प्लेयर्स को प्रेफरेंस दें जो कि बाकी फॉर्मेट खेलते हैं, थोड़े एक्सपीरियंस चाहे वो यंग भी हों, बट एटलीस्ट को 1-2 सीज़न वो खेले हों, ताकि उनको मोर एक्सपीरियंस हो, उनकी बेसिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. हफीज़ तो बहुत दफ़ा ये कह चुका है कि यंगर प्लेयर्स जो अंडर-19 है उनको फ़ौरन T20 खिलाना ही नहीं चाहिए. वो जब तक 1-2 सीज़न फर्स्ट क्लास के खेलते हैं, कुछ मैच्योर होते हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग होती है, फिर उनको खेलना चाहिए. ऑब्वियसली डिबेट है और मेरे ख्याल में राइट वे यही है. आप जितनी जल्दी उनको छोटे फॉर्मेट में डालेंगे वो बड़े फॉर्मेट के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ उसी फॉर्मेट को अडॉप्ट करेंगे और लंबा फॉर्मेट खेलना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए. Thank you, Javeria. I really appreciate it. मैं ऐड करना चाहूँगा. देखें, एक तो हमारी प्लानिंग नहीं होती है. जब एक टीम चल रही होती है उसके पीछे हम बैकअप कभी प्लान नहीं करते हैं, और जो हमारा स्ट्रक्चर है बिहाइंड वो भी इस तरह नहीं सोच रहे थे यार हमने से बाबर के पीछे प्लेयर तैयार करना है, फास्ट बॉलर्स के पीछे जो हमारा बैकअप फास्ट बॉलिंग किया है, बैक स्पिनर, एक तो प्लानिंग ही है. फिर जब हम किसी को पिक करते हैं तो हम अंडर प्रेशर पिक करते हैं. उसमें ये नहीं होता कि समटाइम ये हो जाता है कि आप रॉन्ग नंबर पे खिला देते हैं क्योंकि उसने परफॉर्म किया होता है, तो आप उसको लाजमी अब हमने उनको टूर कराना है, प्रेशर बहुत पड़ गया है. और फिर उसके बाद रॉन्ग फॉर्मेट में भी समटाइम फर्स्ट क्लास में स्कोर किया होता है उसको वनडे में खिला देते हैं या T20 में खिला देते हैं क्योंकि प्रेशर आता है, टूर जा रहा है, लें जी इसको डाल दें. आई थिंक कि जब सिलेक्शन होनी चाहिए वो एट द राइट टाइम होनी चाहिए. और यस, जो प्लानिंग है वो पहले से स्टार्ट होनी चाहिए. 5 साल अहेड जब तक नहीं होंगे हम, तब तक हमारे ये इश्यूज आते रहेंगे. All right, जनाब सुहेल अहमद का सवाल है. थैंक यू Javeria, I really appreciate your question. सुहेल अहमद, आपका एक हैंडल है सुहेल अहमद. आप कह रहे हैं ask the Pavilion में question for all the experts. Shouldn't the umpire ask the captain for what purpose the review is being asked for? In tonight's match, Azam Khan was reviewed for a caught behind. However, the umpire checked for caught behind and the LBW as well. Yeah, I think the law is once you go for referral, ये जो भी अगर लेग बिफोर भी देखते हैं अगर उसमें चांस है, सारे आउट देखते हैं, सारे एंगल्स देखते हैं. दिस इज द लॉ कि once you go to referral they see everything कि किसी तरीके से आउट तो नहीं है, स्टंपिंग ले ले, कॉट बिहाइंड ले ले, लेग बिफोर ले ले. That's why. ओनली थिंग आई थिंक विच हैज़ चेंज कि जो स्टंपिंग का अंपायर्स रिव्यू होता है ना, अब वो कहते हैं कि अब वो कॉट बिहाइंड नहीं देखेंगे. अच्छा, नहीं देखेंगे. हाँ, वो अगर
जो मेरी बात अभी रिसेंटली एम्पायर से हुई, अब पहले स्टंप होगा, नॉट आउट दे दिया तो फिर बैटिंग साइड, फील्डिंग साइड ये क्लेम कर सकती है कि एज लगा हम उसका रिव्यू ले रहे हैं. Okay, cricket is a complicated game. It really is. It's a very unique game. It's one of the greatest game in sport, and only very few countries play. Imagine if I have to explain cricket to American or to German or to European. It's very hard. और टू साउथ अमेरिकन, इल बी इम्पॉसिबल. और उसके बाद हम उसे लॉ पे लॉ चेंज किए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं, हर तीसरे दिन नवा लॉ, हर तीसरे दिन चेंज. सो एक लॉ बना लो, ठीक है, गेम इवॉल्व हो रही है, उसके साथ आपने डिसीजन भी इवॉल्व करने हैं, बट ज़रा कम. यू नो, पहले वनडे थी, फिर T20 आई, फिर एक T10 भी आ गई, फिर 100 बॉल भी आ गई. सो ग्लोबलाइज तो करना है, बट सिंपल वे में करना है गेम को, ग्लोबलाइज कॉम्प्लिकेट नहीं करना. ऑलराइट, नेक्स्ट अप अब्दुल्ला खान, आपका एक्स हैंडल है एक्यूलेक्शन. सो आपका सवाल है, क्वेश्चन फॉर द पैनल, डज एनीवन एग्री दैट दिस ईयर all franchises should have worked with Pakistan Cricket Board on a plan to ensure all positions in the Pak cricket team are tried and tested during the PSL to maximize exposure ahead of Cricket World Cup? Interesting. Positions about मतलब बैटिंग पोजीशंस, प्लेयर्स की पोजीशंस की उनको उसी रोल में खिलाया जाए जिसको कि वो देख रहे हैं फॉर द वर्ल्ड कप. देखें, सिर्फ ये PSL का तो काम ही नहीं है कि वो इस सारी चीज़ों को क्लियर करके दे. आपका डोमेस्टिक के अंदर सारा परफॉर्मर मौजूद है और वो हर एक नंबर पे खेल रहा है. मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन भी मौजूद हैं, ओपनर भी मौजूद हैं, बॉलर्स भी हैं, स्पिन, तो एवरीवन इज़ देयर. तो उनकी परफॉर्मेंस के साथ लीड अप करता है. PSL एक वन ऑफ द प्रोडक्ट है जो तमाम प्लेयर्स को पिक करता है डोमेस्टिक लेवल से. लेकिन जो डोमेस्टिक लेवल है उसमें मजीद इसको जो है जाना चाहिए. लेकिन जब आप आ जाते हैं PSL में, इट्स अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ वेरी फाइनेंशियल साइड ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लीग. तो वो कोई भी फ्रेंचाइज जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेवलपिंग अ प्लेयर विल नॉट टेक दैट रिस्क. और जी लास्ट क्वेश्चन देते हैं आज का. हैशटैग आस्क द पवेलियन के अंदर सवाल हमारे पास आया है तारिक महमूद शोन. ओके, सो जस्ट तारिक महमूद, आपका एक्स हैंडल है TMS3834. नाम भी दस दे तारिक भी. मैं नहीं बता, एज लिखे बस नाम बता दिए ना भाई, बता देते हैं ना. मैं एक्स हैंडल बता देता हूं बिकॉज़ वो उधर बहुत सारे तारिक महमूद होंगे, पता नहीं केड़े वाले था आगे से, और वेरीफाई कर सकते हैं. एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम मोहम्मद हफीज. मोहम्मद हफीज, जस्ट टुडे आई हर्ड ऑन अनदर शो बासित अली क्लेमिंग दैट you were a good bowler before but then became a vatta bowler in the later stage of your career. Is that true? And how would you like to respond to Basit? Did you make this up? No, it's right there. I'm reading it. It's right here. It's right here. Time for a break. We'll see you on the other side. Stay with us. You're watching A Sports. Welcome back to the Pavilion for the one final time this night. And before we sign off, we're going to take a couple of more questions in hashtag Ask the Pavilion. ये सवाल है जनाब तौकीर अब्बास का और आप चारों भाइयों से है. My question is for all of you. Sialkot has always been a city of cricketers. In the last decade, it was the era of Sialkot Stallions. Until now, Sialkot continues to produce cricketers, but there is no team from Sialkot in the Pakistan Super League. जी जनाब. क्या करें, सियालकोट की टीम नहीं है. तौकीर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं. जब ये PSL शुरू हुआ था तो तब ये PSL और फ्रेंचाइजीज की डील हुई थी कि 10 साल तक कोई टीम बिकेगी नहीं. सो आप ये 9वां PSL है, अगला 10वां PSL है, उसके बाद फिर 2 टीमें ऐड होनी है और जो भी टीम खरीदेगा ही और शी will pick the city they want. I suppose Sialkot is very much needed. Sports loving country, दुनिया का सबसे sports का सामान. फैसलाबाद दोनों में से. फैसलाबाद number 2 है. Then you also mentioned Gwadar maybe. I think I'd love to have a Gwadar team too. So let's get by it. Why not? Something from Balochistan. Yeah, we have Quetta now. Let's have Gwadar as well. All right, folks. Mubashir Dhillon साहब का सवाल है. Hi, salam. First of all, Fakhbhai and legends, you are doing an amazing job. Hats off to you guys. It's a complete show full of energy, analysis, and entertainment. Thank you very much. Mubashir Dhillon साहब, my question, do you think लाहौर ने इस्लामाबाद की पार्टी खराब कर दी है आज? कराची now have a fair chance to qualify. बिल्कुल, मुझे लगता है लाहौर से ज़्यादा इस्लामाबाद ने खुद अपनी पार्टी खराब की. Yeah. All right. Thank you, Mubashir Dhillon साहब, and we appreciate your question and everybody who's been sending us. Sorry, बहुत सारे सवाल आते हैं, वक्त की कमी है और चूंकि अब टाइम ज़रा ज़्यादा हो गया तो मेरा ख्याल है हम जो है अब साइन ऑफ करने लगे हैं. लेकिन कल आपके लिए एक और मुकाबला लेकर आ रहे हैं. कल शाम को रावलपिंडी से बराह रास्त आपकी खिदमत में आएगा ये वाला मैच आपकी स्क्रीन पे. दिस इज मैच नंबर 24 एंड इट इज कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड. जी हाँ, दोनों टीमों ने आज मैच खेला है एंड विद इन 24 आवर्स दे विल बी एट इट अगेन. कल शाम 7 बजे बराह रास्त रावलपिंडी से आपकी खिदमत में. हम
आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कल शाम 5 बजे बराह रास्त इस मैच का प्री मैच लेके। एंड इसके साथ ही लीडर बोर्ड पे जरा नजर डाल लेते हैं, चूंकि आज 2 मैचेस हुए हैं, तो जरा अरे मुलाहिजा कीजिए लीडर बोर्ड खवातीन हज़रात। मिसबाह उल हक 15 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पे, अजहर अली इज गेटिंग क्लोजर 13 points, and then it's Wasim Akram with 11, and Mohammad Hafeez has also gained ground, 9 points. Yeah, I mean, you know. Nee, you've gained grounds now. You've stopped taking Qalandars now. Right. इन्होंने कहा था जिस खुद तो डूबे हैं सनम, यारों के अभी ले डूबेंगे. All right. भी ले डूबे. Absolutely. Thank you, Azhar, very much. Thank you, Hafeez. Wonderful, like always. Misbah, thank you so much. Truly appreciate it. And Skipper, congratulations. As president of Karachi Kings, you finally got 2 points for your team. Thank you. 1 point for yourself. Yeah. And it's just fantastic news. कहना तो आदि बिल्ली. And twadibilli.com. Twadibilli वो भी तो आज ही मिली है ना। That's a catch. कल कल से ये. ना जाए था ना। मुझे डर क्या है कि कल हाथी ना निकला है तो मुझे स्टैंड चो एवरी चांस। वो इतना कमीना है कि उसने कुछ बोला है, मैं बोलूंगा नहीं अभी, तू रहन दे, खबरदार बतीसी बंद कर अपनी तू. All right, ladies and gentlemen, with that we say thank you very much. Like always, it's just an honor and a privilege to be sharing the studio with these 4 wonderful gentlemen and to be in your presence. And जाते जाते चिच कुछ गंडेरियां दो तेरियां दो मेरियां. Good night.